10 in the books of Mr. Virag. Apply accounting standard 13. Whether they specify or they don't specify, we have to apply accounting standard 13 in this chapter. Okay. Now the name of investor, they have said Virag. So we'll write books of Mr. Virag. This person has purchased, bought and sold 12% debentures. 12% debentures. In which company? In Limousine Limited. किस कंपनी का डिबेंचर है ये? लिमोजिन. सो इन्वेस्टर का नाम विराग है. इसने डिबेंचर्स परचेज सेल किया है किस कंपनी का? लिमोजिन लिमिटेड. एंड प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, वो लोग हमेशा लेजर अकाउंट पूछेंगे. So when you draw ledger account, my advice always use a double page because it is not possible to draw this account in this chapter on a single side of the page. Simple reason, आप notice करो कितने columns हैं debit में. Date, particulars column, then this WN is working note. Here in this column we write working note number 1, 2, 3, whatever the number. Face value, interest and amount column. Actually face value is also an amount column, interest is also an amount column. This amount column, some people they also do write as cost column. So date, particulars, working note, face value, interest and amount. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So in all 6 columns on debit side, same way 6 columns on credit side. Date, particulars, working note, face value, interest and amount column. So since we have 12 number of columns, it is not possible to arrange. Possible ही नहीं है कि 12 columns सिर्फ आप एक साइड पेज पे बना लो. ओके, सो ऑलवेज यूज अ डबल पेज व्हेन यू ड्रॉ अकाउंट फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. रिमेंबर हमेशा. नाउ स्टूडेंट्स, once we have drawn the account, okay, आप चाहें तो साथ में बना भी सकते हैं. I can wait for 2-3 minutes. आप बना लो, और you can stop the video. पहले ये account बना लो, then later on you will start proceeding. Stop the video, draw this account. Please notice पहले मैंने लिखा है books of Mr. Virag at the top. 12% debentures in Limousine Limited account. Limited account. Then we have 6 columns on debit side, 6 columns on credit side. Date, particular, working note, face value, interest, amount. Date, particular, working note, face value, interest, amount. WN indicates working note. Okay students, आप चाहे तो वीडियो पॉज कर लें, स्टॉप कर लें, टाइम बीन, एंड देन ड्रॉ दिस अकाउंट. अच्छा, ये अकाउंट ऑलमोस्ट 8 to 10 लाइन्स का होगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आई हैव केप्ट 10, 11 लाइन्स. मैक्सिमम 10 लाइन्स में हो जाते हैं इसमें ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स. ओके, सो 6 कॉलम्स ऑन डेबिट साइड, 6 कॉलम्स ऑन क्रेडिट साइड, एंड ऑलमोस्ट 10 to 12 लाइन्स यू कैन कीप फॉर दिस अकाउंट. ओके, आप वीडियो पॉज कर लो, अकाउंट बना लो, एंड देन विल प्रोसीड अगेन. Once you are ready with this account students, next step क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमेशा एक टाइम लाइन बनानी है. ओके, सो आई कैन से ये जो स्पेस अवेलेबल है बिलो दिस अकाउंट, ये स्पेस हम वर्किंग नोट के लिए यूज करेंगे. ओके, सो अभी वर्किंग नोट में सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि एक टाइम लाइन बनाना है. एंड व्हाट डज दैट टाइम लाइन मीन स्टूडेंट्स? अगेन स्टार्ट करते हैं. ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31st March 2010, व्हाट दे आर सेइंग, ईयर एंडेड 31st March 2010. ईयर एंडेड, साल कभी खत्म होगा इसका फाइनेंशियल ईयर? 31st March 2010. सो 31st March 10 इज अकाउंट्स क्लोजिंग डेट. ये तारीख को उसका अकाउंट क्लोज होगा ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31st March 2010. सो सिंस अकाउंट्स का क्लोजिंग डेट 31st March 2010 दिया है, तो वी कैन से कि अकाउंट स्टार्ट कब से होगा, ओपनिंग बैलेंस कब से होगा? 1st April 2009. सो ओपनिंग बैलेंस is for 1st April 2009. So please note, they have said during year ended March 2010. So March 2010 accounts closing date है, तो obviously beginning हमारा opening balance 1st April 2009 होगा. Then students, ये मैंने opening closing लिख लिया. उसके बाद स्टूडेंट्स मंथ का सीक्वेंस में, डेट के सीक्वेंस में हमको सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं. ड्यूरिंग ईयर एंडेड March 2010, Virag bought and sold following debentures, interest payable by Limousine on 1st April, 1st October. अच्छा ध्यान रखना, 1st April को स्टूडेंट्स ओपनिंग बैलेंस भी है, बट क्लियरली दे हैव स्पेसिफाइड कि कंपनी ने प्रॉमिस भी किया है कि ठीक है 1st April ओपनिंग बैलेंस, एंड व्हाट द कंपनी हैज प्रॉमिस कि अगर आपने हमारा डिबेंचर्स लिया है ना, तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे 1st April को 1st October को.
जो भी इन्वेस्टर हो, यहाँ पे इन्वेस्टर मिस्टर विराग है, जिसने भी लिमोजिन लिमिटेड का 12% डिबेंचर्स रखा है अपने पास, उसको कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि साल में 2 मरतबा, ट्वाइस इन अ ईयर, दैट पर्सन विल रिसीव इंटरेस्ट, फर्स्ट अप्रैल को और फिर बाद में अक्टूबर को भी मिलेगा। देन स्टूडेंट्स, इफ यू नोटिस, मई के महीने में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली दे हैव सेट डेट 1 जून, बॉट 300 डिबेंचर्स। सो हमें मंथ और डेट के सीक्वेंस में जाना है। अप्रैल के बाद मई होता है, मई में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, देन दे आर डायरेक्टली सेइंग 1 जून, 1 जून 2009, 1 जून 2009, 1 जून 2009। बॉट मीन्स परचेज ट्रांजैक्शन, तो हमको 1 जून को जो ट्रांजैक्शन दिया है वो परचेज ट्रांजैक्शन दिया है। अगेन नाउ स्टूडेंट, जून के बाद जुलाई नेक्स्ट मंथ, बट अगेन यू कैन नोटिस वो जो पैरा है 1 जून, उसके बाद जुलाई में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट मंथ इज अगस्त, अगस्त में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट मंथ इज सितंबर, सो 1 सितंबर बॉट 100 डिबेंचर्स, so 1 September they have said, after June directly transaction is given for 1 September, and they have clearly said it's a purchase transaction. Okay, so 1 September is purchase transaction. September के बाद अक्टूबर, वो अक्टूबर का ट्रांजैक्शन वो टेबल में तो नहीं दिया है, वो पैरा में नहीं है, बट यू कैन रेफर द सेकेंड लाइन स्टूडेंट्स, interest being payable by Limousine Limited on 1st April and 1st October. Clearly they have said 1st October. So September में हो गया purchase. Next they are saying month of October. October में 1st of October 2009. कंपनी क्या देगी इन्वेस्टर को, जिसने डिबेंचर्स रखा है कंपनी का, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। So 1st October 2009 is the interest date. So we are going in the sequence of month, in the sequence of date. अक्टूबर के बाद नवंबर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। Then 1st December sold 200 debentures. 1st of December they have said. 1st of December 2009 they have given a sale transaction. Month of Jan there is no transaction. Last finally 1st Feb 2009 bought 150 debentures. 1st of Feb 2010 bought means purchase transaction. So these are the transaction which are given to us. April में opening balance भी है, interest भी promise किया है कंपनी ने। May there is no transaction. June में purchase, July August no transaction. सितंबर में परचेज, अक्टूबर सेकेंड लाइन में मेंशन किया कंपनी विल पे इंटरेस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड अक्टूबर। नवंबर नो ट्रांजैक्शन, दिसंबर सेल, जैन नो ट्रांजैक्शन, फेब परचेज। लास्ट फाइनली 31st March 2010 इज द अकाउंट्स क्लोजिंग डेट। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाई वी ड्रॉ दिस टाइमलाइन, एक रीजन तो ये स्टूडेंट्स सो दैट वी डोंट मिस और स्किप एनी ट्रांजैक्शन, क्योंकि अकाउंटिंग स्टूडेंट्स ना उनको आदत होती है वो बैलेंस शीट एंड बिलो दैट एडजस्टमेंट, वो जल्दी समझ में आता है। अकाउंटिंग स्टूडेंट्स व्हेनेवर दे फाइंड ये पैरा टाइप क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें वो डेटा कलेक्ट करना ना, उसमें मिस्टेक कर जाते हैं। तो व्हाट वी डू कि जो भी हमको डेटा दिया था, परचेज सेल ट्रांजैक्शन दिया था, हमने उसको एक टाइमलाइन में सीक्वेंस में अरेंज कर लिया। क्यों अरेंज किया? सो दैट वी डोंट मिस एनी ट्रांजैक्शन। क्योंकि क्या होगा, जून सितंबर दिसंबर फेब तो क्लियरली मेंशन किया है, बट अप्रैल और मार्च उन्होंने फर्स्ट टाइम में मेंशन किया। तो एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट वी मस्ट नो कि 1 अप्रैल ओपनिंग है और 31 मार्च क्लोजिंग है। देन ये इंटरेस्ट डेट अप्रैल अक्टूबर अलग से नहीं लिखा है, वो सेकेंड लाइन में मेंशन किया था, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन सो एंड सो डेट। सो इसके लिए सो दैट वी डोंट मिस और स्किप एनी ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन हमसे छूट नहीं जाए, इसके लिए हम लोग ये टाइम लाइन बनाते हैं। दिस इज वन रीजन। देयर इज वन मोर रीजन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। 2 रीजन है, जो सेकेंड वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करूंगा जब अभी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अकाउंट बना लिया, 6 कॉलम्स ऑन डेबिट साइड, 6 कॉलम्स ऑन क्रेडिट साइड। अकाउंट ऑलमोस्ट 10 लाइन्स का बनेगा, ये 10 लाइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट अकाउंट। ओके, देन स्टूडेंट्स के बाद हमेशा ये टाइमलाइन बनाना, जब भी फिक्स इनकम सिक्योरिटी का क्वेश्चन होगा टाइमलाइन बनाना स्टूडेंट्स। ये टाइमलाइन में सारे ट्रांजैक्शन जो हमें डेट के सीक्वेंस में, मंथ के सीक्वेंस में दिए थे क्वेश्चन में, हमने वो अरेंज कर लिए। क्यों अरेंज किए? सो दैट वी डोंट मिस और स्किप एनी ट्रांजैक्शन। ये हो जाने के बाद देन विल स्टार्ट विद पोस्टेज। नाउ 1st April 2009 इट्स एन ओपनिंग बैलेंस।
इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में आएगा. सो 1 अप्रैल 2009 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अभी क्वेश्चन देखते हैं कोई बैलेंस दिया है नहीं. देखो क्या लिखा था अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग. ड्यूरिंग ईयर एंडेड मार्च 2010 विराग बॉट एंड सोल्ड 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 each ऑफ लिमोजिन लिमिटेड. इंटरेस्ट पेएबल ऑन 1 अप्रैल 1 अक्टूबर. फिर उसके बाद डायरेक्टली 1 जून को परचेज दिया है. सो स्टूडेंट दे हैव जस्ट सेड कि ठीक है मार्च 2010 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होगा तो अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए. बट इफ यू नोटिस कि उसका पहला ट्रांजैक्शन ही स्टार्ट हो रहा है परचेज से 1 जून को. 1 जून से पहले उसके पास कुछ था क्या? इफ यू रेफर द फर्स्ट 2 लाइन ऑफ द क्वेश्चन, वहां पे क्लियरली लिखा है कि ईयर एंडेड मार्च 2010 उसने ये सारे ट्रांजैक्शन किए हैं. बट अप्रैल में कोई ट्रांजैक्शन किया है या अप्रैल में कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या? नहीं है. इसके लिए मैं फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट कॉलम में कुछ नहीं लिख रहा हूं. ओके, सो यू कैन इग्नोर. एक्चुअली 1 अप्रैल आप चाहें तो लिखो ही मत क्योंकि इसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन है, समझाने के लिए इसके लिए मैंने रिकॉर्ड किया. सो 1 अप्रैल 2009 बैलेंस ब्रॉट डाउन, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट निल. ओके, तो 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस. अच्छा, 1 अप्रैल को इंटरेस्ट भी होता है स्टूडेंट्स. बट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे समझना है अभी हमको. इंटरेस्ट किसको मिलेगा? अगर मेरा कोई बैंक में अकाउंट है, ऐसा समझो इसको, बैंक में अगर मेरा कोई अकाउंट है, वेदर इट्स अ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इफ आई हैव सम बैलेंस इन दोस अकाउंट, बैंक विल पे मी इंटरेस्ट. अगर वो अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है तो वी कांट एक्सपेक्ट एनी इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक. तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो. ये जो 12% डिबेंचर्स कौन सी कंपनी का है? लिमोजिन का. अगर लिमोजिन का डिबेंचर्स विराट के पास ऑलरेडी है तब तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा. अगर उसके पास कोई डिबेंचर्स नहीं है लिमोजिन लिमिटेड का तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. तो अभी तक तो हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे ना अप्रैल के महीने में ओपनिंग बैलेंस कितना है स्टूडेंट्स? निल है. फेस वैल्यू, अमाउंट देखो कुछ नहीं है. So since balance in this account as on 1 April 2009 is nil, how can Mr. Virat expect interest from Limousine Limited? जैसे मैंने कहा बैंक में अगर आपके पास बैलेंस है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा. बैलेंस अगर 0 है तो बैंक आपको इंटरेस्ट देने से मना कर देगी. तो सेम कंसेप्ट, लिमोजिन लिमिटेड का डिबेंचर्स अगर आपके पास है तो कंपनी से इंटरेस्ट मांगो. अगर आपके पास डिबेंचर्स नहीं है तो हाउ कैन कंपनी पे यू इंटरेस्ट? तो सिंस ओपनिंग बैलेंस आपका निल है तो यू कान एक्सपेक्ट एनी इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी. सो प्लीज फॉरगेट इट, उसको भूल जाओ, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. सो 1 अप्रैल 2009 2 ट्रांजैक्शन थे स्टूडेंट्स. ओपनिंग बैलेंस था निल और इंटरेस्ट क्यों नहीं आया? बिकॉज ओपनिंग बैलेंस निल है तो इंटरेस्ट भी निल होगा. तो मैंने दोनों ट्रांजैक्शन कवर कर लिए. मैंने पेंसिल से उसको टिक मार्क कर लिया कि 1 अप्रैल 2009 के दोनों ट्रांजैक्शन कवर हो चुके हैं. सो अप्रैल इज डन. नाउ नेक्स्ट मंथ इज मई के महीने में स्टूडेंट्स इफ यू रेफर द टाइमलाइन, नो ट्रांजैक्शन. डायरेक्टली जून, 1 जून परचेज ट्रांजैक्शन. ओके स्टूडेंट्स, now we are starting with 1 June and purchase transaction. Students, इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो एसेट होता है. एसेट जब भी परचेज करो तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक. बिल्डिंग परचेज किया तो बिल्डिंग डेबिट टू बैंक. प्लांट परचेज किया तो प्लांट डेबिट टू बैंक. फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो सेम वे इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो ना, 12% डिबेंचर्स विराट के लिए इन्वेस्टमेंट है. सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो स्टूडेंट्स 1 जून 2009 it's a purchase transaction, so investment account debit to bank account. अभी यहाँ पे मैंने कोई डिटेल्स नहीं लिखी है टाइमलाइन पे सिर्फ मेंशन किया है कि 1 जून को परचेज है. उसकी डिटेल्स आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा. 1 जून बॉट 300 डिबेंचर्स एट ₹92x इंटरेस्ट. स्टूडेंट ध्यान से दिखना, बॉट के बाद ना ₹300 नहीं कहा है, जस्ट 300. सो जस्ट 300 का मीनिंग होता है ये क्वांटिटी है 300 डिबेंचर्स, ये वैल्यू नहीं है. बट लेजर अकाउंट्स एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट हमें यहाँ पे सब वैल्यू चाहिए. ये तीनों जो है ना अमाउंट कॉलम है, फेस वैल्यू भी, इंटरेस्ट भी और ये लास्ट कॉलम भी अमाउंट है. सेम वे क्रेडिट साइड पे फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट कॉलम, तीनों में अमाउंट कॉलम आएगा. इसमें क्वांटिटी कॉलम एक भी नहीं है स्टूडेंट्स. सो वहां पे ₹300 नहीं लिखा है, जस्ट 300 मीन्स नंबर ऑफ डिबेंचर्स.
स्टूडेंट्स ये आपने लास्ट टाइम में पढ़ा था, नंबर ऑफ शेयर्स हो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो, तो उसको मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कर लेते हैं। तो 300 डिबेंचर्स नंबर है। फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, सो 300 इंटू 100 कर लो। तो 300 इंटू 100 विल बी 30,000, तो हमें फेस वैल्यू मिल गया 30,000। So Mr. Viraj bought 300 debentures. So 300 is the number. उसको multiply by face value per debenture करो. Face value per debenture is 100. So 300 into 100 will be 30,000. So under face value column I recorded 30,000. Students, मैंने जो 5 पॉइंट आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, now those points, उसमें पॉइंट नंबर 1 था, interest should be calculated on face value. तो इंटरेस्ट अभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू 30,000 है। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, वेदर ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल और क्लोजिंग, चारों ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट कंपलसरी होता है। बट ओपनिंग बैलेंस स्टूडेंट देखो फेस वैल्यू निल था, इसके लिए मैंने इंटरेस्ट भी नहीं कैलकुलेट किया। बट परचेज में ना फेस वैल्यू है, यस है 30,000, तो इसका इंटरेस्ट आएगा। सो हियर आई एम राइटिंग वर्किंग नोट नंबर 1 वर्किंग नोट कॉलम में, एंड हियर ओवर हियर विल ड्रॉ वर्किंग नोट WN1 इंटरेस्ट is on 1st June 2009. So this is our first working note. Interest should be calculated on face value. Face value हमें पता है 30,000. So 30,000 multiply by rate of interest भी पता है 12%. 12% debentures का है. Now like depreciation, number of months, कितने महीने का इंटरेस्ट, 3 महीने का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 3/12, 2/12, 8/12, सो नंबर ऑफ मंथ्स लिखना पड़ेगा, या इट इज फॉर द एंटायर ईयर, सो 12/12, सो 12/12 तो लिखने की जरूरत नहीं। नो फॉर दैट रीजन वी हैव ड्रॉन दिस टाइमलाइन। मैंने कहा था ना टाइमलाइन बनाने के 2 रीजन है। एक रीजन क्या है, सो दैट वी डोंट मिस एनी ट्रांजैक्शन, सो डेट के मंथ के सीक्वेंस में ऑल दोज ट्रांजैक्शन वी रिकॉर्डेड ऑन दिस टाइमलाइन, वी प्रेजेंटेड इट ऑन टाइमलाइन। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, जब आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे, सो नंबर ऑफ मंथ्स डिसाइड करने के लिए टाइमलाइन आपको काम आएगी। 1 जून को हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं परचेज ट्रांजैक्शन का, तो 1 जून में हम खड़े हैं, पीछे पलट के देखना है कि इंटरेस्ट कंपनी ने कब प्रॉमिस किया था। सो यहाँ देखेंगे मैंने रेड पेन से लिखा है 1 अप्रैल 2009 को कंपनी ने इंटरेस्ट प्रॉमिस किया था, तो 1 अप्रैल 2009 से 1 जून काउंट करो। सो अप्रैल एंड मई, सो 2 months, so we'll write 2/12. ओके स्टूडेंट्स, अगेन 1 जून परचेज ट्रांजैक्शन, उसका इंटरेस्ट हम लोग फाइंड कर रहे हैं। सो 30,000 फेस वैल्यू, 12% इंटरेस्ट, नंबर ऑफ मंथ्स के लिए जून में हम लोग हैं, पीछे पलट के देखेंगे व्हेन वी टर्न बैक, लास्ट प्रॉमिस डेट वाज 1 अप्रैल 2009, तो 1 जून, 1 अप्रैल लास्ट डेट, सो 1 अप्रैल से 1 जून काउंट करो, अप्रैल फुल मंथ, मई फुल मंथ, जून काउंट मत करना स्टूडेंट्स, ये 1 जून है, एक दिन के लिए पूरा महीना काउंट नहीं होता। 1 अप्रैल से 1 जून तक, नॉट 30th जून, इट इज 1 जून, सो 2 months, 2/12, सो 30,000 फेस वैल्यू इंटू 12% इंटू 30,000 इंटू 12% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, so it comes to 600. So 600 is the interest which we got, वो interest column में आ जाएगा। Finally we require amount, वहां पे देखो क्या लिखा था, 1 June 2009 bought 300 debentures at 92x interest। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 हमने नोट्स में मैंने बताया था आपको कि ट्रांजैक्शन प्राइस शुड बी एक्स इंटरेस्ट, आपका ओपनिंग बैलेंस हो, परचेज हो, सेल हो या क्लोजिंग बैलेंस, ये हमेशा एक्स इंटरेस्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने एक्स इंटरेस्ट कहा है, तो गुड फॉर अस। बॉट 300 डिबेंचर्स एट ₹92, इसका मतलब क्या, 92 का ₹92 मतलब पर डिबेंचर he has paid 92 to purchase it। एक डिबेंचर खरीदने के लिए उसने 92 रुपीज दिया। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स खरीदे, 300, सो 300 into 92, so it comes to 27,600, तो उसने ये डिबेंचर्स 27,600 में खरीदा। हाउ वी गॉट 30,000, 300 डिबेंचर्स परचेज मल्टीप्लाई बाय 100। हाउ वी गॉट इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 1, फेस वैल्यू
मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मंथ कहां से आया स्टूडेंट्स, 1 जून में हम लोग हैं, पीछे पलट के देखना है लास्ट प्रॉमिस डेट क्या था। लास्ट प्रॉमिस डेट हमको क्वेश्चन में दिया था 1 अप्रैल कंपनी ने प्रॉमिस किया था, तो 1 अप्रैल से 1 जून काउंट करो 2/12, सो वी रिकॉर्डेड 600। ये 27,600 कैसे आया, वहां पे लिखा है 300 डिबेंचर्स आर परचेज एट ₹92। एट ₹92 मतलब एक डिबेंचर 92 रुपीज में खरीदा, सो 300 डिबेंचर्स परचेज इनटू 92, सो वी गेट 27,600। So now students we have completed this transaction also. ये 1 जून 2009 भी हो गया। नेक्स्ट जुलाई में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, अगस्त में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, देन देयर इज सितंबर, 1 सितंबर 2009 अगेन परचेज। स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट एसेट परचेज कर रहे हैं, तो एसेट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो 1 सितंबर 2009 टू बैंक अकाउंट। डिटेल्स के लिए क्वेश्चन देखते हैं। 1 सितंबर बॉट 100 डिबेंचर। अगेन स्टूडेंट्स वहां पे ₹100 नहीं लिखा है, जस्ट 100 का मतलब क्वांटिटी है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, और यहाँ हमें क्वांटिटी नहीं रुपीज चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो 100 डिबेंचर नंबर हुआ और एक डिबेंचर का वैल्यू भी 100 है, तो 100 इंटू 100 करेंगे स्टूडेंट्स, सो वी गेट 10,000। सो फेस वैल्यू कैलकुलेट करना आसान होता है। अगर नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिया है सो मल्टीप्लाई विद फेस वैल्यू पर डिबेंचर, सो 100 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 100 वी गेट 10,000। हमने नोट्स में लिखा था स्टूडेंट्स, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज कंपल्सरी, सो वर्किंग नोट नंबर 2। सो आई एम स्टार्टिंग विद वर्किंग नोट नंबर 2 नाउ। वर्किंग नोट नंबर 2 शॉर्ट में लिख रहा हूं INT। इंटरेस्ट इज ऑन 1 सितंबर 2009। वर्किंग नोट नंबर 2 1 सितंबर 2009। इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, हमने पॉइंट नंबर 1 लिखा था नोट्स में, 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, यस 12%, सो 12/100। नाउ टू गेट नंबर ऑफ मंथ्स, अगेन स्टूडेंट टाइमलाइन पे आ जाओ। ये ट्रांजैक्शन का हम इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं, 1 सितंबर परचेज का हमको इंटरेस्ट फाइंड करना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स 1 सितंबर में हम लोग खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग हियर। पीछे पलट के देखना है कि लास्ट प्रॉमिस डेट क्या था। ओके, लास्ट प्रॉमिस डेट एज पर लाइन नंबर 2, क्वेश्चन का लाइन नंबर 2 में देखो सेकेंड लाइन में था कि कंपनी विल पे इंटरेस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड अक्टूबर। हमेशा इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए आगे नहीं देखना है स्टूडेंट्स, पीछे पलट के देखना है। तो 1 सितंबर से इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, इफ यू टर्न बैक, तो हमें पता चलेगा कि लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने जो प्रॉमिस किया था अप्रैल में किया था, मैंने रेड पेन से लिखा भी है उसको। तो जब भी इंटरेस्ट रेट होता है मैं रेड पेन से लिखता हूँ उसको। बट स्टूडेंट ध्यान रखना, हमेशा नंबर ऑफ मंथ्स डिसाइड करने के लिए वी ऑलवेज टर्न बैक। ओके, तो 1 सितंबर से पीछे पलट के देखेंगे तो अप्रैल में इंटरेस्ट मिला था, तो अप्रैल से स्टार्ट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सो 5 मंथ्स। डोंट काउंट मंथ ऑफ सितंबर, सिंपल रीजन स्टूडेंट्स, ये 1 सितंबर है, 30 सितंबर नहीं है, सो 1 अप्रैल से 1 सितंबर 5 मंथ्स होता है। सो 10,000 face value, interest is calculated on face value into 12% into 5 divided by 12, so it comes to 500। so हमें इसका भी इंटरेस्ट मिल गया 500। now we need this cost amount चाहिए, उसके लिए क्वेश्चन देखो। bought 100 debentures at 94 कम इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 हमने जो नोट्स में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शन प्राइस शुड बी एक्स इंटरेस्ट, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे कम इंटरेस्ट दिया है, तो आई कांट रिकॉर्ड इट डायरेक्टली इन दिस अकाउंट, आई कांट पोस्ट इट टू द अकाउंट। जब भी कम इंटरेस्ट प्राइस देगा स्टूडेंट, सो देन दिस वर्किंग इज कंपल्सरी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है तो पहले वो कम इंटरेस्ट प्राइस लिखते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा है कम INT, कम इंटरेस्ट प्राइस। What is that price they have said? 94। 94 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? 100 डिबेंचर उसने खरीदे हैं और एक डिबेंचर का 94 पे किया है। सो 100 into 94, टोटली ही पेड 9,400। बट दिस प्राइस इज कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब ये प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, नहीं चलेगा, तो इंटरेस्ट माइनस करते हैं। एंड स्टूडेंट्स इंटरेस्ट अभी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम कौन से ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं? 1 सितंबर बॉट 100 डिबेंचर्स एट 94 कम इंटरेस्ट। 1 सितंबर ये वाला ट्रांजैक्शन था,
और इसका इंटरेस्ट तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं स्टूडेंट्स 500, यहाँ पे हमने किया था 500 आंसर आया था स्टूडेंट्स हमको. सो वो ही 500, दैट सेम 500 शुड बी डिडक्टेड हियर स्टूडेंट्स. सो 9400 minus 500, so it comes to 8900. So we got the cost, so we can record it here, 8900. Okay students, so again 100 debentures purchase, 100 debentures purchase, so 100 into 100 we got 10,000. फिर इंटरेस्ट फाइंड करना है. इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. फेस वैल्यू 10,000, 12% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये नंबर ऑफ मंथ्स 5 कहां से आया? ये ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं. पीछे पलट के देखना है, टर्न बैक. यू विल नोटिस कि कंपनी ने कब प्रॉमिस किया था इंटरेस्ट? 1 अप्रैल. सो 1 अप्रैल से 1 सितंबर काउंट करो तो 5 मंथ्स, तो 500 रुपीज आया. सो आई रिकॉर्डेड हियर 500. नाउ स्टूडेंट्स, प्राइस हमेशा जो भी क्वेश्चन में होना चाहिए ना, एक्स इंटरेस्ट. अगर कम इंटरेस्ट प्राइस है ना, डोंट रिकॉर्ड इट डायरेक्टली हियर, इट्स नॉट अलाउड. सो पहले वो कम इंटरेस्ट प्राइस लिखो जो क्वेश्चन में दिया है. 94 मतलब एक डिबेंचर का 94. सो 100 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 94, 9400. दिस इज 100 नंबर ऑफ डिबेंचर जो उसने परचेज किया, 94. ये 500 कहां से आया? दिस ट्रांजैक्शन वी आर रिकॉर्डिंग, इसी का तो कॉस्ट फाइंड करना है. एंड वी नो 500 यहाँ पे हमने फाइंड किया था. सो ये 500 वी डिडक्टेड. ओके, सो 9400 माइनस 500 वी गॉट 8900. सो स्टूडेंट, दिस ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो डन. नाउ 1 अक्टूबर 2009 ये इंटरेस्ट प्रॉमिस किया था कंपनी ने कि साल में 2 बार मिलेगा. सेकेंड लाइन ऑफ द क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर एवरी ईयर. स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्ट इनकम होता है. अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, बैंक में रखा है या डिबेंचर्स लिया है कंपनी का, तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा. एज एन इन्वेस्टर विल रिसीव इंटरेस्ट. तो वी रिसीव इंटरेस्ट मतलब इट्स एन इनकम. सो क्रेडिट साइड पे होगा. डेट इज 1 अक्टूबर. सो 1 अक्टूबर 2009 इंटरेस्ट आएगा. सो बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. वर्किंग नोट नंबर 3. नाउ स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन होगा, अप्रैल में नहीं था. क्यों नहीं था? बिकॉज फेस वैल्यू ब्लैंक जीरो था, बैलेंस जीरो था, इसके लिए मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया. अभी 1 अक्टूबर में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा. जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था अप्रैल के महीने में कि इंटरेस्ट का कैसे डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स. अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है तो आपको बैंक इंटरेस्ट पे करेगी. आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आपको बैंक इंटरेस्ट नहीं देगा. सेम वे विराग ने 12% डिबेंचर वो बेच रहा है, खरीद रहा है, किसका? लिमोजिन लिमिटेड का. तो अगर अक्टूबर के महीने में 1 अक्टूबर विराग के पास कोई 12% डिबेंचर्स है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा. बट अगर 1 अक्टूबर को उसके पास 0 डिबेंचर्स है, कुछ डिबेंचर्स नहीं है स्टूडेंट्स, तो कंपनी उसको इंटरेस्ट दे ही नहीं सकती. तो पहले हमें डिसाइड करना चाहिए कि विराग के पास डिबेंचर्स है या नहीं है. प्लीज स्टूडेंट्स, है, ध्यान रखो. जून में और सितंबर में उसने परचेज किया ना, ऑल्दो अप्रैल में नहीं था, बट जून और सितंबर में उसने परचेज कर लिया. सो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. 30,000 का ये, 10,000 का ये, सो 40,000 का उसके पास टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स है स्टूडेंट्स. सो वी स्टार्ट विथ वर्किंग नोट नंबर 3. मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 3. इंटरेस्ट इज ऑन 1 अक्टूबर 2009. सो नाउ स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है हमको एज ऑन 1 अक्टूबर 2009. सो 1 अक्टूबर 2009 को इंटरेस्ट, जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे. इसके पास डिबेंचर्स है, लिमोजिन का है, दो बार उसने परचेज किया, 30 एंड 10. सो टोटल वैल्यू विल बी 40,000. So 40,000 multiply by what is the rate of interest? 12% multiply by. अभी नंबर ऑफ मंथ चाहिए ना स्टूडेंट्स. वंस अगेन टाइमलाइन पे आ जाओ. अक्टूबर के महीने में हम लोग खड़े हैं, ये ट्रांजैक्शन की बात हो रही है. पीछे पलट के देखना लास्ट प्रॉमिस डेट कब था. हमेशा आगे नहीं स्टूडेंट्स, पीछे देखो. अक्टूबर से अगर पीछे पलट के देखेंगे तो लास्ट प्रॉमिस डेट कंपनी का पॉलिसी था 1 अप्रैल का. तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर काउंट करो. फुल मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. सो 6 मंथ्स होगा स्टूडेंट, 7 नहीं. अक्टूबर मत काउंट करना बिकॉज ये 1 अक्टूबर है.
31 अक्टूबर नहीं है स्टूडेंट्स। वन सेकेंड, जब भी आप स्पेसिफिक इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन पे आओगे ना स्टूडेंट्स, तो पहले देखो इन्वेस्टर के पास डिबेंचर है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, उसके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस होगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, बैलेंस नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। उसके पास बैलेंस है, ठीक है, ओपनिंग तो नहीं है, बट अक्टूबर से पहले उसने 2 डिबेंचर खरीद के रखे ना, जून और सितंबर में। तो जून और सितंबर में जो उसके पास डिबेंचर है उसका इंटरेस्ट तो मांगने का हक रखता है कंपनी से। ही हैज अ राइट टू आस्क इंटरेस्ट ऑन दीज 2 ट्रांजैक्शन। सो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू 30 and 10, सो आई रिकॉर्डेड 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, क्वेश्चन में दिया है 12% डिबेंचर। नंबर ऑफ मंथ्स के लिए हम लोग अक्टूबर में हैं। पीछे पलट के देखना है कि लास्ट प्रॉमिस डेट कब था, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर हमने काउंट किया, सो इट कम्स टू 6 मंथ्स। सो नाउ 40,000 into 12% into 6 divided by 12, so it comes to 2,400. so students मैं रेड पेन से ही लिख देता हूं यहाँ पे इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन, ये हो गया 2,400. so we have completed 1 October also. ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन था, दिस इज ऑल्सो डन. नवंबर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है स्टूडेंट्स. Then comes a sale transaction 1st of December 2009. जब इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो हमने डेबिट में लिखा. अब इन्वेस्टमेंट बेच रहा है, इट इज सोल्ड, सो ऑब्वियसली इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. एसेट बेच रहा है ना स्टूडेंट, सो कैश कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. सो बैंक अकाउंट डेबिट करना है स्टूडेंट्स. सो आ जाते हैं हम 1 दिसंबर 2009 बाय बैंक अकाउंट. डिटेल्स के लिए क्वेश्चन देखते हैं. 1 दिसंबर 2009 सोल्ड 200. अगेन स्टूडेंट्स वो रुपीज 200 नहीं है, जस्ट 200 का मतलब होता है क्वांटिटी, नंबर ऑफ डिबेंचर है. हमें नंबर नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, हमें तो वैल्यू रुपीज चाहिए. तो सिंपल, जब भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स होगा 200 है ये केस में, उसको मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू पर डिबेंचर 100 है. सो 200 into 100 करो, सो आ जाएगा 20,000. सो फेस वैल्यू वी गॉट 20,000. Working note number, this will be now 4. For every transaction interest is compulsory. याद आया? Point number 2, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसका सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, वेदर ओपनिंग, परचेज या सेल. ओपनिंग में फेस वैल्यू नहीं था, इसके लिए इंटरेस्ट नहीं है. परचेज में फेस वैल्यू है तो देखो इंटरेस्ट भी है. सेल्स में फेस वैल्यू है तो इंटरेस्ट भी होगा. जब भी आप फेस वैल्यू लिखोगे तो इंटरेस्ट भी जरूर लिखना. इंटरेस्ट फिर ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. हाँ, ये पॉसिबल है कि फेस वैल्यू है, आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और 0 आया तो इट विल बी 0, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अगर फेस वैल्यू होगा तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कंपल्सरी है. सो वर्किंग नोट नंबर 4 स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट दे से वर्किंग नोट नंबर 4, आई एम रिकॉर्डिंग हियर. वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट INT मैंने शॉर्ट में लिखा है, एज ऑन 1 दिसंबर 2009 वी आर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट एज ऑन 1 दिसंबर. इंटरेस्ट हमेशा स्टूडेंट्स फेस वैल्यू पे फाइंड किया जाता है. फेस वैल्यू पता है? यस पता है, 20,000. सो फेस वैल्यू इज 20,000. ठीक है, 20,000 इज द फेस वैल्यू. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12%. सो 12 अपॉन 100. अभी हमें नंबर ऑफ मंथ्स चाहिए. नंबर ऑफ मंथ्स के लिए हम कहाँ हैं? 1 दिसंबर में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं. पीछे पलट के देखना है कि लास्ट प्रॉमिस डेट, कंपनी का पॉलिसी क्या था. सेकेंड लाइन ऑफ द क्वेश्चन, कंपनी विल पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर. स्टूडेंट्स क्लियरली मेंशन किया था. सो अगर मैं दिसंबर से पीछे पलट के देखूंगा तो पहले अक्टूबर दिखेगा कि अप्रैल पहले दिखेगा? ऑब्वियसली दिसंबर में खड़ा हूं, पीछे पलट के देखूंगा तो अक्टूबर पहले मुझे दिखेगा. सो नाउ अभी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, नंबर ऑफ मंथ्स का कैलकुलेशन ये डेट से स्टार्ट होगा, नॉट फ्रॉम अप्रैल. जब तक हम यहां नहीं पहुंचे थे स्टूडेंट्स, जून के लिए मैंने ये डेट देखा था, सितंबर के लिए भी ये डेट देखा था. अभी हम ये हर्डल क्रॉस कर गए, जो कंपनी का प्रॉमिस डेट था ये क्रॉस कर गए. तो जब इसके आगे निकल गए, अब यहाँ से जब पलट के पीछे देखेंगे, व्हेन वी टर्न बैक, तो पहले हमें ये डेट दिखेगी, ये तो बाद में दिखेगी ना. तो इसके लिए जो पहले दिखेगी उसको सामने रखना है टू गेट द नंबर ऑफ मंथ्स. सो दिसंबर से पीछे पलट के देखा हमने तो अक्टूबर पहले दिखेगा स्टूडेंट. सो 1 अक्टूबर से 1 दिसंबर काउंट करते हैं. फुल मंथ ऑफ अक्टूबर, फुल मंथ ऑफ नवंबर, फॉरगेट दिसंबर बिकॉज वो 1 दिसंबर है, 31 दिसंबर नहीं है. सो इंटू 2/12. सो 20,000 फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू,
into 12% rate of interest into 2 divided by 12, it comes to 400. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 400. ओके, नाउ अभी अमाउंट चाहिए. अगेन क्वेश्चन देखो, सोल्ड 200 डिबेंचर्स एट 95. आगे क्या लिखा है स्टूडेंट्स? एक्स इंटरेस्ट. पॉइंट नंबर 3 हमने नोट्स में लिखा था, एफ ट्रांजैक्शन प्राइस शुड बी एक्स इंटरेस्ट प्राइस. और देखो ये एक्स इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है हमारे लिए. 200 डिबेंचर उसने बेचा और एक डिबेंचर 95 में बेचा. सो 200 इंटू 95 इज 19,000. सो हियर विल रिकॉर्ड 200 इंटू 95, 19,000. सो वी गॉट द प्राइस ऑल्सो. सो दिस वॉज 1 December. बट स्टूडेंट्स ये ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ. पॉइंट नंबर 4 एज पर द नोट्स, whenever there is sale transaction, calculation of profit or loss is compulsory. जब भी सेल ट्रांजैक्शन होगा तो प्रॉफिट लॉस फाइंड करना हमारे लिए कंपलसरी है. वो लोग मेंशन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, हमको याद रखना है. सो आई एम ड्राइंग दैट वर्किंग फॉर दैट प्रॉफिट लॉस. मैं प्रीवियस पेज पे बना रहा हूँ, ये मेरा पेज ब्लैंक है इसके लिए. आप दूसरे पेज पे, नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर सकते हैं. वर्किंग नोट नंबर, that is working note number 5 होगा स्टूडेंट्स. working note number 5. I am writing with another pen. चलो, profit loss as on 1 December 2009. हमने नोट्स में इसका फॉर्मूला भी लिखा था स्टूडेंट्स. एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस, मैं शॉर्ट में एसपी लिख रहा हूं, सेलिंग प्राइस, माइनस एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में मैंने लिख दिया सीपी. तो हमें सेलिंग प्राइस चाहिए और कॉस्ट प्राइस चाहिए, बट वो भी एक्स इंटरेस्ट होना चाहिए. स्टूडेंट सेलिंग प्राइस के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा है. वो 95 दिया था ना, 95 एक्स इंटरेस्ट, तो हमने 200 इंटू 95 किया था, वी गॉट 19,000. वहां पे क्लियरली उन्होंने कहा था कि वो एक्स इंटरेस्ट है. तो एक्स इंटरेस्ट है तो हम डायरेक्टली उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं 95. सो 19,000. कॉस्ट प्राइस मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में, कॉस्ट प्राइस आपको कभी नहीं देगा क्वेश्चन. उसके लिए वेटेड एवरेज अप्लाई करते हैं. वेटेड एवरेज मतलब ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स. वो फॉर्मूला क्या है? इट इज फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, INVT मैंने शॉर्ट में लिखा है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड अपॉन, ये न्यूमरेटर हो गया, टोटल फेस वैल्यू, शॉर्ट में मैंने FV लिख दिया है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट. लास्ट वीडियो में हमने पूरा फॉर्मूला लिखा था, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड अपॉन टोटल फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट. और मैंने स्टूडेंट्स ऐसा कुछ बताया था, डेबिट माइनस क्रेडिट, इफ यू रिमेंबर. फेस वैल्यू के नीचे भी लिखा था डेबिट माइनस क्रेडिट, और कॉस्ट के नीचे भी लिखा था डेबिट माइनस क्रेडिट. नाउ विल एक्सप्लेन ये क्या होता है स्टूडेंट्स. पहले तो ये सिंपल है, न्यूमरेटर पार्ट है ना स्टूडेंट्स, वो सबसे आसान है. फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये इन्वेस्टमेंट बेचा है हमने 1 December को, उसका फेस वैल्यू तो मुझे पता है 20,000, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 20,000. अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर, टोटल फेस वैल्यू, वो भी डेबिट माइनस क्रेडिट. बड़ा आसान है स्टूडेंट. टोटल, क्लियरली टर्म क्या है? टोटल और डेबिट. सो फेस वैल्यू कॉलम में जाओ और टोटल करो फेस वैल्यू कॉलम का, डेबिट साइड का. ये तो 0 है, सो 30 प्लस 10, सो इट कम्स टू 40,000. सो डेबिट टोटल हो गया 40,000 माइनस क्रेडिट. स्टूडेंट्स माइनस क्रेडिट डजंट मीन्स के फेस वैल्यू का टोटल करना. डेबिट के लिए ऑब्वियसली मैंने टोटल किया 30 प्लस 10, 40,000 वहां पे लिखा. माइनस क्रेडिट डजंट मीन्स के आप फेस वैल्यू का टोटल करना स्टार्ट कर दो, नहीं. ये सेल ट्रांजैक्शन है, अभी हमने रिकॉर्ड किया, इसी का प्रॉफिट लॉस फाइंड कर रहे हैं ना. तो जो सेल का प्रॉफिट लॉस फाइंड कर रहे हैं ना, उसको इग्नोर करो, ऐसा समझो वो है ही नहीं. उसके ऊपर देखो, प्रायर टू दैट, अबाउ दैट फेस वैल्यू कॉलम में कोई अमाउंट है क्या? ये 20,000 को इग्नोर करो. अबाउ दैट, प्रायर टू दैट फेस वैल्यू कॉलम में कोई अमाउंट है? नहीं है, तो आई विल राइट -0. दिस इज डेबिट माइनस क्रेडिट. डेबिट का मतलब क्या? फेस वैल्यू का डेबिट टोटल करो. तो 2 ट्रांजैक्शन है, मैंने टोटल कर लिया. माइनस क्रेडिट क्या? जो सेल ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट लॉस फाइंड कर रहे हैं, द ट्रांजैक्शन फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इग्नोर दैट ट्रांजैक्शन, उसको इग्नोर करो. उसके ऊपर देखो, अबाउ दैट, प्रायर टू दैट फेस वैल्यू कॉलम में कोई अमाउंट है क्या? नहीं है, इसके लिए -0. सेम कंसेप्ट विल अप्लाई फॉर कॉस्ट कॉलम, डेबिट माइनस क्रेडिट. डेबिट मतलब स्टूडेंट्स पहले डेबिट टोटल करो,
It is 27,600 plus 8,900. It comes to 36,500. So मुझे डेबिट टोटल मालूम पड़ गया कॉस्ट कॉलम का, लास्ट कॉलम का 36,500. माइनस क्रेडिट, अगेन द सेम कंसेप्ट. माइनस क्रेडिट का मतलब ये नहीं होता है कि क्रेडिट कॉलम क्रेडिट साइड, सॉरी अमाउंट कॉलम क्रेडिट साइड टोटल करो. ओके, इट डजंट मीन्स दैट. माइनस क्रेडिट मीन्स व्हाट? ये जो आपने करंट सेल जिसका प्रॉफिट लॉस फाइंड कर रहे हो, वी आर कंसर्न विद कॉस्ट कॉलम. अमाउंट कॉलम को कॉस्ट कॉलम भी कहते हैं. तो इसको इग्नोर करो. इसके ऊपर देखो, प्रायर टू दैट अमाउंट कॉलम में कोई अमाउंट है क्या, कॉस्ट कॉलम में कोई अमाउंट है क्या? नहीं, तो जीरो. दिस इज डेबिट माइनस क्रेडिट. सो डेबिट साइड पे आएंगे तो हम टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड पे आएंगे तो टोटल नहीं करते. जो करंट सेल जिसका पीएनएल फाइंड कर रहे हैं ना, उसको इग्नोर करो. उसके ऊपर अगर कोई अमाउंट है तो माइनस करो. सेम वे कॉस्ट कॉलम, डेबिट साइड का तो टोटल करना सुन, जितने ट्रांजैक्शन है उस सबका टोटल 27,600 प्लस 8,900 36,500. बट क्रेडिट साइड पे आओगे तो टोटल मत करना. जिसका पीएनएल फाइंड कर रहे हो वो सेल को इग्नोर करो. अबाउट दैट, प्रायर टू दैट अगर कोई अमाउंट है तो माइनस करो, नहीं है तो जीरो लिखो. देन विल सॉल्व दिस. 20,000 divide by 40,000 into 36,500. It comes to 18,250. ये आंसर आया हमको. इसको कहते हैं एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस, जो हमको क्वेश्चन में नहीं दिया था. सो नाउ आई कैन रिकॉर्ड दिस 18,250 हियर. सो 19,000 कहां से लिखा था मैंने? यहां से. 200 into 95, 19,000 दैट आई कॉपीड हियर. कॉस्ट प्राइस नहीं दिया था तो इसके लिए भी अप्लाइड दिस फॉर्मूला. फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 20,000 अपॉन टोटल फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट. डेबिट माइनस क्रेडिट मतलब डेबिट का टोटल करो, फेस वैल्यू कॉलम का, इट कम्स टू 40, तो वो 40,000 यहां लिखा मैंने. क्रेडिट साइड का टोटल कभी मत करना. जिसका प्रॉफिट लॉस फाइंड कर रहे हो वो सेल ट्रांजैक्शन इग्नोर करो. अबाउट दैट, प्रायर टू दैट फेस वैल्यू कॉलम में कुछ नहीं है तो जीरो. सेम वे कॉस्ट कॉलम, कॉस्ट कॉलम का टोटल करो एवरी ट्रांजैक्शन का. 27,600 8,900 36,500. सो आई रिकॉर्डेड 36,500. क्रेडिट साइड पे आओगे तो टोटल मत करना कॉस्ट कॉलम का. जिसका पीएनएल फाइंड कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस, वो ट्रांजैक्शन इग्नोर करो. अबाउट दैट, प्रायर टू दैट देखो कोई अमाउंट है क्या? नहीं है स्टूडेंट, सो माइनस जीरो. सॉल्व दिस. 20,000 अपॉन 40,000 इंटू 36,500 वी गेट 18,250. हियर आई रिकॉर्डेड. सो आपको सेलिंग प्राइस अभी पता है 19,000, कॉस्ट प्राइस मालूम पड़ गया 18,250, सॉरी 18,250. So we get 750. तो मुझे आंसर आ गया यहाँ पे 750. एंड दिस इज गेन स्टूडेंट्स. सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, गेन. अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपने बहुत मर्तबा राइट फ्रॉम 11th 12th स्टैंडर्ड आप सीखते आ रहे हैं. इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड टू पीएनएल, लॉसेस एक्सपेंस आर डेबिटेड टू पीएनएल. तो ये तो गेन है ना, गेन. इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड टू पीएनएल स्टूडेंट्स, बट ये पीएनएल अकाउंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है. तो पीएनएल क्रेडिट हो रहा है, सो ऑब्वियसली दिस अकाउंट विल बी डेबिटेड. ऑपोजिट इफेक्ट आएगा, सेकेंड इफेक्ट तो फिर डेबिट में आना चाहिए इसका. सो 1 दिसंबर जिस दिन आप सेल कर रहे हो, 1 दिसंबर 2009, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वर्किंग नोट नंबर क्या था उसका? 5. वर्किंग नोट नंबर वाज 5. तो हियर आई विल रिकॉर्ड नथिंग, यहाँ भी कुछ नहीं, और जो सिर्फ प्रॉफिट आया 750 वो रिकॉर्ड किया. वंस अगेन, इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड टू पीएनएल. सो ये पीएनएल में क्रेडिट होगा, बट ये पीएनएल नहीं है स्टूडेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है. पीएनएल अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं, जो भी दूसरे अकाउंट में इसका इफेक्ट जाएगा ऑब्वियसली डेबिट में जाएगा, अपोजिट इफेक्ट होगा. तो 1 दिसंबर 2009 टू पीएनएल, वर्किंग नोट नंबर 5. जब भी प्रॉफिट लॉस आता है स्टूडेंट्स, तो फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉलम ब्लैंक रखना, सिर्फ अमाउंट कॉलम में आएगा. लॉस होता तो मैं यहाँ पे लिखता नथिंग इन फेस वैल्यू, नथिंग इन इंटरेस्ट. वो 750 अगर लॉस होता तो मैं यहाँ लिखता अमाउंट कॉलम में. तो प्रॉफिट हो, गेन हो या लॉस हो, उसका इफेक्ट सिर्फ अमाउंट कॉस्ट कॉलम में जाता है स्टूडेंट्स, नथिंग इन फेस वैल्यू एंड इंटरेस्ट. सो ये सेल ट्रांजैक्शन भी हमने कर लिया. सो दिस इज ऑल्सो डन. तो आगे 1 अप्रैल से स्टार्ट किया था, दिसंबर तक आ गए. जैन में कोई ट्रांजैक्शन नहीं. अब 1 फेब परचेज दिया है स्टूडेंट्स. अच्छा परचेज है, इन्वेस्टमेंट परचेज करो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. 1st of Feb 2010. डिटेल्स के लिए क्वेश्चन देखते हैं.
बॉट 150 डिबेंचर। अगेन स्टूडेंट्स रुपीज 150 नहीं है, जस्ट 150। 150 मतलब क्वांटिटी, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, नंबर चाहिए। तो 150 नंबर ऑफ डिबेंचर और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 है। फर्स्ट लाइन क्वेश्चन में दिया था हमको 12% डिबेंचर्स ऑफ 100। सो 150 into 100 करेंगे तो वी गेट 15,000। सो 15,000 इज द फेस वैल्यू। वर्किंग नोट नंबर 6। अगेन पॉइंट नंबर 2 अगर आपको याद हो, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इंटरेस्ट। एवरी ट्रांजैक्शन मतलब ओपनिंग बैलेंस, परचेज या सेल या क्लोजिंग बैलेंस भी होगा तो उसका भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में फेस वैल्यू नहीं था तो इंटरेस्ट भी नहीं है, बट ये परचेज में फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट भी है, फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट भी है। यहाँ फेस वैल्यू तो यहाँ भी इंटरेस्ट होगा, सेल में फेस वैल्यू था तो यहाँ भी इंटरेस्ट है स्टूडेंट। ओके, सो फॉर एवरी ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेशन कंपल्सरी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट नंबर 6 में। यहाँ पे कर रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 6। इंटरेस्ट शॉर्ट में INT लिखा है मैंने। इंटरेस्ट इज ऑन 1st Feb 2010। इंटरेस्ट इज ऑन 1st Feb 2010। फेस वैल्यू कितना है उसका 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। अभी नंबर ऑफ मंथ चाहिए। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। सो फेस वैल्यू 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, नंबर ऑफ मंथ्स के लिए 1st Feb में। अभी हम यहां पहुंच गए, अभी हम यहां खड़े, वी आर स्टैंडिंग हियर। सो टर्न बैक और लास्ट प्रॉमिस डेट देखो। सो 1st Feb से अगर मैं पीछे पलट के देखूंगा तो स्टूडेंट्स ये था कंपनी का पॉलिसी कि विल पे यू इंटरेस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड अक्टूबर। बट फेब से आगे नहीं देखना है स्टूडेंट्स, पीछे पलट के देखना है। तो जब पीछे पलट के देखेंगे तो अक्टूबर पहले दिखेगा हमको, नॉट अप्रैल। अप्रैल तो बाद में आ रहा है उसके, तो इसलिए हम अक्टूबर से काउंट करेंगे। सो 1st अक्टूबर से 1st Feb काउंट करो। फुल मंथ ऑफ अक्टूबर बिकॉज 1st अक्टूबर है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। सो 4 मंथ्स। फेब काउंट मत कर लेना स्टूडेंट्स बिकॉज वो 1st Feb है, 28th Feb नहीं है। ओके, सो कैलकुलेशन होगा 15,000 into 12% into 4 divided by 12. It comes to 600. So here we got the answer as 600. So working note number 6 का आंसर हमें इंटरेस्ट मिल गया 600. Now I need the cost. उसके लिए अगेन क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। Bought 150 debentures at 98. Come interest. Students, transaction price should be X interest. Come interest होगा तो we can't record it, post it to the account. So पहले कम इंटरेस्ट प्राइस लिखते हैं। INT मैंने शॉर्ट में लिखा है। कम इंटरेस्ट प्राइस 150 डिबेंचर उसने खरीदे हैं और एक डिबेंचर के लिए उसने 98 रुपीज पे किया है। 150 इंटू 98, 150 इंटू 98, इट कम्स टू 14,700. So here we'll record 14,700. So कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब ये प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो वो इंटरेस्ट को बाहर कर दो। INT में शॉर्ट में लिख रहा हूं इंटरेस्ट। ओके, वापस इंटरेस्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं। हम किसका इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस करने जा रहे हैं, ये जो हमने परचेज किया था इसका कॉस्ट फाइंड करना है ना, तो इसी का इंटरेस्ट माइनस करेंगे, विच वी नो ऑलरेडी कैलकुलेटेड 600। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 600। सो 14,700 माइनस 600, सो वी गॉट द एक्स इंटरेस्ट प्राइस। ये हमारे लिए हो जाएगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस। सो एक्स इंटरेस्ट प्राइस मिल गया। नाउ दिस कैन बी रिकॉर्डेड टू द अकाउंट हियर 14,100. So price should be always X interest students. अगर उन्होंने हमको कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है तो कम इंटरेस्ट प्राइस लिखो, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करो, नेट आंसर X इंटरेस्ट होगा। दैट कैन बी रिकॉर्डेड हियर। तो हम 1st Feb का भी ट्रांजैक्शन कर चुके। 1st Feb इज डन। नाउ फाइनली वी आर ऑन 31st March 2010. क्लोज अकाउंट्स क्लोज करना है। वहां पे फर्स्ट लाइन में लिखा था during the year ended 31st March 2010. So year ended clearly mention किया है. So 31st March 2010 we have to close the account. So 31st March 2010 asset account है, so balance credit side पे होगा, by balance carried down. Students, accounts closing simple, आपको सिर्फ टोटल करना है, बैलेंस में फिगर फाइंड करना है। ओके, सो year टोटल करना है, हमको टोटल करना है। So account closing is nothing but we have to take the totals. पहले हमेशा फेस का वैल्यू कॉलम से स्टार्ट करो। फेस वैल्यू कॉलम डेबिट साइड का टोटल 30 + 10 40 + 15, सो टोटल इज 55,000।
सेम टोटल में यहाँ लिखता हूँ। अब बैलेंसिंग फिगर 55 और ये 20 है, तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर क्या होगा स्टूडेंट्स, 35,000। अगेन स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन फाइंड इंटरेस्ट वेदर ओपनिंग, बट ओपनिंग में फेस वैल्यू नहीं था तो इसलिए इंटरेस्ट भी नहीं है। परचेज का इंटरेस्ट फाइंड किया, यस। सेल का इंटरेस्ट फाइंड किया, यस। इवन क्लोजिंग का भी इंटरेस्ट फाइंड करना है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और जब आज भी अभी ये वीडियो भी जब हमने स्टार्ट किया था, आई रिपीटेड दोस 5 पॉइंट्स। सो फॉर एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इंटरेस्ट वेदर ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस फेस वैल्यू नहीं था, इसके लिए मैंने इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया, बट परचेज का कैलकुलेशन किया इंटरेस्ट का, सेल का भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है, सो क्लोजिंग बैलेंस का भी करना पड़ेगा स्टूडेंट। ओके, वी कांट इग्नोर दैट। Okay, so working note number 6 यहाँ तक हो गया था. So now we are starting with working note number 7. Working note number 7. WN short में लिखा है मैंने. Interest INT as on 31st March 2010. Interest is calculated on face value. Face value is 35,000. Okay, so face value 35,000. What is the rate of interest? It is 12%. So in 12 upon 100. अभी स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मंथ चाहिए, वापस हमारी टाइमलाइन पे आ जाओ. टाइमलाइन ये लास्ट मार्च में हम खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग हियर. पीछे पलट के देखना है कि लास्ट प्रॉमिस डेट क्या था स्टूडेंट्स. सो मैंने रेड पेन से मार्क किया, तो मार्च से अगर मैं पीछे पलट के देखता हूं तो लास्ट प्रॉमिस डेट तो अक्टूबर था, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च काउंट करो. सो फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल 31 मार्च नंबर ऑफ मंथ्स विल बी 6. फुल मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. मार्च भी काउंट करना बिकॉज दिस इज 31st, ईयर एंड है एकदम. सो 35,000 इज द फेस वैल्यू इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, इट कम्स टू 2,100. सो हमें ये इंटरेस्ट भी मिल गया 2,100. सो स्टूडेंट्स वी गॉट द इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे 2,100. Once again I repeat, अकाउंट्स क्लोजिंग का सिंपल मीनिंग क्या होता है, आपको टोटल करना है. सो टोटल हमेशा फेस वैल्यू से स्टार्ट करो. तो फेस वैल्यू क्लोज किया डेबिट साइड 55,000, सेम टोटल मैंने यहाँ लिखा. ये बैलेंसिंग फिगर है 55 माइनस 20, सो 35,000. फॉर एवरी ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेशन कंपल्सरी है, तो ये 35,000 का हमने इंटरेस्ट फाइंड किया वर्किंग नोट नंबर 7 में. 35,000, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/12. क्यों 6/12? अकाउंट्स क्लोजिंग डेट है, लास्ट इंटरेस्ट पीछे पलट के देखेंगे ना स्टूडेंट्स. सो लास्ट प्रॉमिस डेट, हाँ लास्ट प्रॉमिस डेट देखने का. अक्टूबर में अप्रैल अक्टूबर का है, सो मार्च से व्हेन वी टर्न बैक, सो लास्ट प्रॉमिस डेट वाज अक्टूबर. 1 अक्टूबर से 31 मार्च, इट इज 6 months. So we recorded 6 months here, 6/12, so we get 2,100. So 2,100 we recorded here. तो फेस वैल्यू कॉलम हो गया. अभी स्टूडेंट अब आ जाओ इंटरेस्ट कॉलम. देखो फेस वैल्यू में मैंने डेबिट टोटल पहले किया था, बट इंटरेस्ट में क्रेडिट टोटल पहले करना है. 2,100 प्लस 400 प्लस 2,400, सो इट कम्स टू 4,900. सेम टोटल देन विल रिकॉर्ड हियर 4,900. एंड स्टूडेंट्स जो भी बैलेंस आएगा 31 मार्च 10 को वी आर क्लोजिंग द अकाउंट, विल राइट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये इन्वेस्टर के लिए इनकम होता है. तो ये पीएनएल में जाएगा, इसका जो भी बैलेंस होगा 4,900. वी आर फाइंडिंग बैलेंसिंग फिगर माइनस 600 माइनस 500 माइनस 600, सो इट कम्स टू 3,200. सो योर आंसर इज 3,200. ओके, सो मैंने क्या किया, पहले फेस वैल्यू कॉलम क्लोज किया, सेम अमाउंट यहाँ पे लिखा, टोटल करके यहाँ लिखा क्रेडिट साइड पे. ये बैलेंसिंग फिगर है 35,000. इसका इंटरेस्ट फाइंड किया वर्किंग नोट 7 में 2,100. फिर इंटरेस्ट कॉलम का क्रेडिट टोटल पहला किया, सो वी गेट 4,900. सेम टोटल यहाँ पे लिखा. फिर ये बैलेंसिंग फिगर है स्टूडेंट्स 3,200. वैसे पेंसिल से इसको मार्क कर देता हूँ. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर स्टूडेंट्स 3,200. दिस 35,000 इज ऑल्सो अ बैलेंसिंग फिगर. देन लास्ट फाइनली वी हैव कॉस्ट कॉलम. सो पहले कॉस्ट कॉलम का लाइक फेस वैल्यू डेबिट टोटल करते हैं. 27,600 प्लस 8,900 प्लस 750 प्लस 14,100, सो इट कम्स टू 51,350. 51,350. स्टूडेंट्स अभी एक एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में, वो लास्ट एडजस्टमेंट है. सपोज अगर वो एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं दिया, इफ इट इज नॉट गिवन, देन व्हाट टू डू.
जस्ट बैलेंसिंग फिगर लिखो 51,350 से 19,000 माइनस करो, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर एंड खत्म, सॉल्यूशन खत्म हो गया. ओके, इफ दैट एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन, एक एडजस्टमेंट है अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, अगर वो एडजस्टमेंट दिया ही नहीं है, इट्स नॉट गिवन, सो पहले डेबिट टोटल किया मैंने कॉस्ट कॉलम का, सेम टोटल यहाँ लिखा. इफ दैट एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन प्लीज जस्ट राइट द बैलेंसिंग फिगर एंड फॉरगेट इट, हो गया खत्म, सॉल्यूशन डन. बट वो एडजस्टमेंट है एंड दैट इज रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 5 जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स. और फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा उसका वर्किंग नोट नंबर 8, अगर आपको याद हो ये पेज पे देखो है भी, इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. जब भी आप अकाउंट्स क्लोज करोगे, मार्केट प्राइस अगर आपको दिया है तो फॉलो दिस रूल, और दिया है स्टूडेंट देखो लास्ट में, बुक्स आर क्लोज ऑन 31st March every year. Market price on 31st March was rupees 90 debenture. So market price rupees 90 debenture का स्टूडेंट्स मतलब दो मतलब होते हैं, या तो क्या करो ये जो फेस वैल्यू का मैंने बैलेंसिंग फिगर फाइंड किया था ना वो लिखो 35,000 और इंटू 90% कर दो, वो रुपीज 90 को परसेंट समझ लो, फेस वैल्यू 35,000 इंटू 90%, it comes to 31,500. There is one more way to get the answer. ये मार्केट प्राइस क्या करो, ये 35,000 फेस वैल्यू है ना, अगर नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड कर सकते हो क्या, इसका ये नंबर नहीं है फेस वैल्यू, ये फाइंड कर सकते हैं, ये 35,000 को डिवाइड बाय 100 करो. क्यों डिवाइड बाय 100? क्योंकि फेस वैल्यू पर डिबेंचर इज 100. सो 35,000 अगर आप उसको डिवाइड बाय 100 कर दोगे ना स्टूडेंट्स तो नंबर ऑफ डिबेंचर आएगा, और उसको 90 रुपीज से मल्टीप्लाई करो. देखो अगर फेस वैल्यू कंसिडर कर रहे हो तो 90% लिखना, अगर नंबर ऑफ डिबेंचर्स कंसिडर कर रहे हो तो रुपीज 90, फेस वैल्यू कंसिडर कर रहे हो तो 90% लिखना, वहां पे रुपीज 90 कहा था बट उसको परसेंटेज बना लेना. और अगर नंबर ऑफ डिबेंचर कंसिडर करना, नंबर ऑफ डिबेंचर्स के साथ 35,000 अपॉन 100 विल गिव अस नंबर ऑफ डिबेंचर 350 इंटू 90. तो दोनों तरीके से आपको आंसर सेम आएगा स्टूडेंट, दोनों में से एक मेथड फॉलो करो. सो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस. अभी कॉस्ट प्राइस बचा, उसका सिंपल मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर होता है, और बैलेंसिंग फिगर क्या होगा 51,350 जो टोटल था उसे 19,000 माइनस कर लेते हैं तो बैलेंसिंग फिगर विल बी 32,350. सो कॉस्ट प्राइस भी हमें पता चल गया 32,350. सो मार्केट प्राइस एक ही है स्टूडेंट, दो नहीं, आपको मैंने सिर्फ बताया है कि दो तरीके हैं, देयर आर 2 ways टू गेट द आंसर, और दोनों तरीके से आंसर सेम होगा. उन्होंने रुपीज 90 कहा था तो क्या करना है, ये फेस वैल्यू है ना इसको मल्टीप्लाई बाय 90 करो बट रुपीज की जगह उसको परसेंटेज बना लो. सो 31,500. अगर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स के बेसिस पे करना है, बिकॉज परचेज सेल देखो आप नोटिस करना हो प्रीवियस पैरा में सब नंबर ऑफ डिबेंचर्स के बेसिस पे था, तो अगर नंबर ऑफ डिबेंचर्स के बेसिस में करना है तो 35,000 जो फेस वैल्यू है पहले उसको 100 जो फेस वैल्यू पर डिबेंचर उससे डिवाइड करो. सो 35,000 अपॉन 100 करेंगे तो 350 आएगा, वो 350 को रुपीज 90 परसेंट की जगह रुपीज 90 से मल्टीप्लाई करो तो 31,500. सो कोई भी मेथड फॉलो करो आपको मार्केट प्राइस सेम होगा. और कॉस्ट प्राइस का सिंपल मीनिंग यहाँ मैं ऑलरेडी टोटल लिख चुका हूँ. देखो बैलेंसिंग फिगर कितना है यहाँ लिखना नहीं है, जस्ट फाइंड करो. सो 51,350 माइनस 19,000 सो वी गेट 32,350. सो मार्केट प्राइस 31,500, कॉस्ट प्राइस 32,350 विच एवर इज लेस. सो ऑब्वियसली 31,500 लेस है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 31,500. ओके स्टूडेंट्स, टोटल कितना है 51,350, ये कितना है 19,000. सो 19,000 प्लस ये कितना है 31,500. अब मैंने 31,500 तो लिख दिया बिकॉज ऑफ दैट रूल कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. तो जब मैं टोटल करता हूँ 19,000 प्लस 31,500, सो टोटल इससे मैच नहीं हो रहा है, 50,500 आ रहा है सिर्फ, दैट मीन देयर इज अ डिफरेंस. सो 50,500 जो मुझे आया माइनस 51,350. तो देर इज ए बैलेंसिंग फिगर ऑफ 850 रुपीज इन दिस अकाउंट. ये 850 बैलेंसिंग फिगर है स्टूडेंट्स, ये बैलेंसिंग फिगर. ओके, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर 850 रुपीज का स्टूडेंट्स. इसको मैं लिख दूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज बिकॉज ऑफ वर्किंग नोट नंबर 8 जो हमने प्रीवियस पेज पे बनाया, एंड डेट विल बी 31st March 10.
नथिंग हियर, नथिंग हियर। 850 क्यों आया? वंस अगेन स्टूडेंट्स, कॉस्ट कॉलम का टोटल किया 51,350 आई गॉट, सेम टोटल आई रिकॉर्डेड हियर 51,350। नाउ सपोज अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो केस में क्या करना है, 850 को भूल जाओ, 51,350 माइनस 19,000, जो भी बैलेंस में फिगर आएगा वो लिखो, सॉल्यूशन खत्म हो गया। बट स्टूडेंट्स क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है, तो जब मार्केट प्राइस दिया हो ना तो पहले ये वर्किंग नोट बनाने का। सो मार्केट प्राइस 35,000 फेस वैल्यू, ₹90 को मैंने परसेंटेज में कंसिडर किया, 90% आई गॉट 31,500। नंबर ऑफ डिबेंचर्स के बेसिस पे जाना है तो 35,000 फेस वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू पर डिबेंचर विच इज 100, 35,000 अपॉन 100 350 इंटू 90 रुपीज 31,500। सो मार्केट प्राइस दोनों में से एक तरीके से आप फाइंड कर सकते हो विच कम्स टू 31,500। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है यहाँ पे जो बैलेंस में फिगर आ रहा है, ये 850 31,500 तो मैंने बाद में लिखा था, 51,350 दिस 51,350 माइनस 19,000, so I got 32,350। अब दोनों को कंपेयर करो, 31,500 and 32,350, so whichever is less, so 31,500 is less, so I recorded market price। अच्छा स्टूडेंट्स, अब टोटल तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सेम टोटल कॉपी किया था, तो दिस प्लस दिस इससे मैच होना चाहिए, बट मैच नहीं हो रहा है, 850 का डिफरेंस आ रहा है, सो दैट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम लोग कह सकते हैं कि लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है या लॉस ऑन सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन है, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कहते हैं इसको स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो एक यहाँ पे गेन था, अगर आपको याद हो 1 दिसंबर, ये गेन क्यों आया था? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट बेचा। क्रेडिट साइड में पीएनएल मतलब होता है लॉस, ये लॉस क्यों हुआ? आपने इन्वेस्टमेंट बेचा नहीं है, उसका मार्केट प्राइस ना आपके कॉस्ट प्राइस से कम है, तो वैल्यूएशन की वजह से मार्केट में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ना डिबेंचर्स की वैल्यू में, उसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। ओके, सो ये जो गेन है इन्वेस्टमेंट बेचने की वजह से। अब पीएनएल मैंने क्रेडिट साइड में लिखा, मतलब ये लॉस, बट ये लॉस जो है ना इन्वेस्टमेंट मैंने बेचा नहीं है, क्या हुआ है? उसका मार्केट में प्राइस गिर गया स्टूडेंट। सो इसको हम कह सकते हैं लॉस ऑन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन भी कह सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पेंसिल से आपके रेफरेंस के लिए लिख सकते हो स्टूडेंट्स, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन और लॉस ऑन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, दोनों में से कोई भी एक टर्म लिखो। दिस वॉज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज लॉस ऑन revaluation or loss on subsequent recognition। So 31st March 2010 is done। So this is the entire solution for this question number 1 which we did। एक बार मैं जल्दी से क्विकली 5 मिनट में रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी का है, हमें कैसे पता ये फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया है 12%, मतलब वो फिक्स है। ओके, कंपनी का प्रॉफिट कितना भी हो मुझे 12% इंटरेस्ट मिलेगा, विराग को 12% इंटरेस्ट मिलेगा। अकाउंट बनाना है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डबल पेज यूज करो, हमेशा सिंगल पेज पे नहीं बनेगा। सिंपल रीजन, बिकॉज देयर आर 6 कॉलम्स ऑन डेबिट साइड एंड 6 कॉलम्स ऑन क्रेडिट साइड, तो मैंने ये अकाउंट बना लिया। देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद दिस टाइम लाइन। ये टाइम लाइन का 2 रीजन है, एक वो जो हमको ट्रांजैक्शन दिए हैं मंथ के डेट के सीक्वेंस में अरेंज किए मैंने, so that we don't miss or skip any transaction, ये एक रीजन है। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन स्टूडेंट्स, बार बार हमको इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ता है ना, तो इंटरेस्ट के लिए नंबर ऑफ मंथ्स चाहिए, तो बेस्ड ऑन दिस टाइमलाइन हमारे लिए नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। ओके, देन वी स्टार्टेड ओपनिंग बैलेंस, 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस था, बट ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं था तो मैंने ब्लैंक रखा। देन परचेज, फिर एवरी ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट, जहां जहां परचेज सेल या क्लोजिंग बैलेंस है सबका इंटरेस्ट भी फाइंड किया है। बट ध्यान रखना, ये जो अमाउंट कॉस्ट प्राइस लिखते हैं ना, ये हमेशा एक्स इंटरेस्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये वाला जो परचेज था ना ये एक्स इंटरेस्ट पे था, बट ये वाला जो परचेज था ना ये 8,900 हमने फाइंड किया था, यहाँ पे देखो वर्किंग नोट नंबर 2 में, दिस वाज कम इंटरेस्ट, तो कम इंटरेस्ट प्राइस डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंट में, डायरेक्टली पोस्ट नहीं कर सकते। एक्स इंटरेस्ट देखो मैंने डायरेक्टली लिखा था 300 इंटू 92, वो फाइंड नहीं करना पड़ा था। ये 8,900 हमने कैलकुलेट किया, दिस वाज कम इंटरेस्ट प्राइस, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया तो वी गॉट दिस, सो मैंने यहाँ लिखा था 8,900। जब परचेज करते हैं डेबिट, अच्छा फिर इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन था 1 अक्टूबर को, तो स्टूडेंट जब भी इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन होगा ना 1 अक्टूबर या जो भी डेट होगा, स्पेसिफिक इंटरेस्ट से आप डील कर रहे हो तो उसमें फेस वैल्यू और अमाउंट कॉलम में कुछ मत लिखना, जो भी कुछ होगा अमाउंट वो सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में आएगा। ओके, इसको ऐसे समझना है स्टूडेंट्स, आपके पास देखो अकाउंट में बैलेंस कितना है, अगर आपका बैंक अकाउंट है सपोज, तो बैंक अकाउंट में बैलेंस है तो जो बैलेंस होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर बैलेंस ही 0 है तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बैलेंस था 1 अक्टूबर है ना, तो मैंने जून और सितंबर में 2 डिबेंचर्स खरीद के रखे थे, तो 30 एंड 10 40,000, तो हमने वो 40,000 का इंटरेस्ट वर्किंग नोट नंबर 3 में कैलकुलेट किया था।
ये नंबर ऑफ मंथ्स अक्टूबर में थे, लास्ट इंटरेस्ट 1 अप्रैल से अक्टूबर, वी गॉट दिस आंसर 2400। सेल हमेशा क्रेडिट साइड पे, फेस वैल्यू 200 डिबेंचर्स इनटू 100, एवरी ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट इज कंपलसरी, तो इसका इंटरेस्ट हमने वर्किंग नोट नंबर 4 में फाइंड किया था। ओके, प्राइस हमेशा एक्स इंटरेस्ट होना चाहिए, ये प्राइस एक्स इंटरेस्ट था 95, सो 200 इंटू 95 किया था हमने 119,000। जब भी इन्वेस्टमेंट बेचा प्रॉफिट लॉस कंपलसरी है, तो प्रॉफिट लॉस हमने यहाँ पे फाइंड किया, एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस माइनस एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस, दिस इज नोन गिवन, ये नहीं था स्टूडेंट्स, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड न्यूमरेटर 20,000, सो न्यूमरेटर 20,000 अपॉन टोटल फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट मतलब ये तो बाद में आया सब ट्रांजैक्शन, पहले ये 2 ही ट्रांजैक्शन था, सो टोटल किया था 30 + 10 40 हुआ, माइनस क्रेडिट मतलब जो सेल किया उसको इग्नोर करो, अबाउट दैट प्रायर टू दैट कोई ट्रांजैक्शन है नहीं है, 0, सो 40 - 0। सेम वे कॉस्ट कॉलम, ये ट्रांजैक्शन तो बाद में आए, ये 2 ट्रांजैक्शन थे तो दोनों को मैंने ऐड करके 36,500 लिखा, इग्नोर 19, अबाउट दैट कॉस्ट कॉलम में कुछ है क्या, नहीं है, तो -0। सॉल्व दिस, वी गॉट 18 to 50, कॉस्ट यहाँ पे लिखा, 19 माइनस दिस वी गॉट गेन, गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड टू पीएनएल, पीएनएल क्रेडिट होगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा, और कहां पे आएगा ये अमाउंट, गेन हो या लॉस हो, हमेशा कॉस्ट कॉलम में लिखना, फेस वैल्यू और इंटरेस्ट में कुछ मत लिखना। ओके, देन अ परचेज ट्रांजैक्शन था, उसका इंटरेस्ट फाइंड किया था, और स्टूडेंट्स ये 14,100 ना, ये हमने कैलकुलेट किया था, ये कम इंटरेस्ट प्राइस दिया था 14,700, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया तो वी गॉट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। मैंने कहा ना ट्रांजैक्शन प्राइस हमेशा एक्स इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर कम इंटरेस्ट है तो ये वर्किंग बनाओ एंड गेट द आंसर, सो वी डिड दैट। देन स्टूडेंट्स वर्किंग नोट नंबर 7 इज नथिंग बट अकाउंट्स क्लोजिंग। क्लोज कैसे किया, पहला फेस वैल्यू का टोटल किया 55, सेम टोटल यहाँ पे लिखा 55, देन ये बैलेंसिंग फिगर 35, ये बैलेंसिंग फिगर का इंटरेस्ट फाइंड किया ओवर ईयर, ये वर्किंग नोट नंबर 7, 35,000 का इंटरेस्ट फाइंड किया 2,100। आफ्टर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट स्टूडेंट्स, फिर इंटरेस्ट का टोटल किया क्रेडिट साइड 4,900, सेम टोटल आई रिकॉर्डेड ईयर, और ये बैलेंस फिगर फाइंड किया 3,200। अब आ जाओ कॉस्ट कॉलम, लाइक फेस वैल्यू पहले डेबिट टोटल करो, सेम टोटल यहाँ पे लिख लो, अगर मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो जस्ट फाइंड बैलेंस फिगर एंड स्टॉप, सॉल्यूशन खत्म हो गया। बट यहाँ पे मार्केट प्राइस था तो इसके लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया, मार्केट प्राइस 35,000 इंटू 90% या नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंटू 90, वी गॉट 31,500, दोनों तरीके से आंसर सेम होगा। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या स्टूडेंट्स, देखो ये 850 तो मैंने लास्ट में लिखा, ये नहीं था उस टाइम, सो 51,350 माइनस 19,000, सो वी गेट 32,350, दोनों को कंपेयर करो, विच एवर इज लेस, सो विच एवर इज लेस में 31,500 लेस है, सो आई रिकॉर्डेड 31,500। फिर ये कॉलम टैली नहीं हो रहा है, बैलेंस फिगर आ रहा है, सो आई रिकॉर्डेड बाय पीएनएल। इसको हम लोग कहते हैं लॉस ऑन रीवैल्यूएशन या लॉस ऑन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। ओके, दोनों में से कोई सा भी टर्म आप लिख सकते हैं, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन और लॉस ऑन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सो हमेशा स्टूडेंट्स फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी के लिए 5 पॉइंट ध्यान रखना, भूलना नहीं। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इंटरेस्ट, एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस, अगर कम इंटरेस्ट प्राइस है तो मेक इट एक्स इंटरेस्ट, वेन एवर देर इज सेल कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, तो सेलिंग प्राइस पता होगा, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया होगा तो फॉलो दिस फॉर्मूला, एंड लास्ट जब अकाउंट क्लोज करोगे, इसका एक ही बार यूज होता है पॉइंट नंबर 5 का, जब आप अकाउंट क्लोज करते हैं एट द वेरी एंड स्टूडेंट्स, वहां पे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अगर नहीं दिया है तो कोई अजम्पशन नहीं करना स्टूडेंट्स, ओके, देन जस्ट अकाउंट क्लोज करो, बैलेंसिंग फिगर फाइंड करो, मार्केट प्राइस होगा तो विल फॉलो दिस पॉइंट नंबर 5, अगर मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो इग्नोर पॉइंट नंबर 5, फिर पॉइंट नंबर 5 का कोई काम नहीं है, कोई यूज नहीं है स्टूडेंट। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ये पूरा है, और इसका वर्किंग नोट यहाँ पे भी है स्टूडेंट्स। ओके, सो यू कैन नोटिस कि अकाउंट तो 8-10 लाइंस में हो जाता है, बट इसके वर्किंग्स काफी सारे हो जाते हैं स्टूडेंट्स, एंड प्लीज वर्किंग नोट्स आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसके टॉप पे बिगनिंग में लिखा होता है कि वर्किंग नोट्स आर नेसेसरी स्टूडेंट्स, तो वर्किंग नोट्स का भी प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, बैड हैंड राइटिंग में नहीं होना चाहिए, अच्छे से करना है वर्किंग नोट्स भी। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, that's all for this. Next time we'll do one more question based on fixed interest security. Thank you.